All right, so we're gonna start with our third chapter of volume one. Let's see. A very nice saintly person. So basically, इस chapter में we will be discussing about um, basically that phase will come when Srila Prabhupada will meet his spiritual master. So let's see. There has not been, there will not be such benefactors of the highest merit as Chaitanya Mahaprabhu and his devotees have been. The offer of other benefits is only a deception. It is rather a great harm, whereas the benefit done by him and his followers is the truest and greatest eternal benefit. This benefit is not for one particular country, causing mischief to another, but it benefits the whole universe. श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती. So इसमें श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु और उनके जो भक्त हैं, बेसिकली ही इज टेलिंग अबाउट कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है ये सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री या एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप इसको फॉलो कर रहा है तो इसको फॉलो करके दूसरे के साथ में कुछ वो गड़बड़ काम कर सकता है। अब देखिए ना, ये भगवत धर्म कितना सुंदर है कि इससे पशु पक्षियों को भी बेनिफिट होता है। मनुष्यों की तो बात ही दूर की है। मतलब मनुष्य की बात तो है ही, मनुष्यों में भी ठीक है, जाति पाति का कोई भी भेद नहीं है। उसके अलावा ये पशु और पक्षियों का भी उद्धार करने वाला है। सो दिस इज रियली अमेजिंग. ओके, नाउ लेट्स begin. Abhay's friend Narendra Nath Malik was insistent. He wanted Abhay to see a sadhu from Mayapur. Naren and some of his friends had already met the sadhu at his nearby ashrama on Ulta Danga Junction Road. And now they wanted Abhay's opinion. Everyone within their circle of friends considered Abhay the leader. So if Naren could tell the others that Abhay also had a high regard for the sadhu, then that would confirm their own estimations. Abhay was reluctant to go, but Naren pressed him. तो अभय के जो फ्रेंड थे नरेंद्र नाथ मलिक, वो चाहते थे कि अभय एक साधु से मिले मायापुर में। नरेन और जो उनके फ्रेंड्स थे वो ऑलरेडी उन साधु से मिल लिए थे। उनके उनका जो आश्रम था वहां पर वो मिल लिए थे और यहाँ पे बताया गया उल्टा दंगा जंक्शन रोड पर था उनका आश्रम। और अब चाह रहे थे कि ठीक है हम तो साधु जी से मिल लिए हैं, लेकिन वो चाह रहे थे कि एक बार अभय भी उनसे मिले ताकि बेसिकली उनसे मिले। सो दे वर इम्प्रेस्ड, जो भी उनकी टीचिंग्स थी, तो वो कंफर्म करना चाहते थे कि अभय मतलब अभय जब उनसे मिले तो अभय का ओपिनियन भी जानना चाहते थे कि अभय को कैसा क्या लगता है। सो ही वॉज काइंड ऑफ ट्राइंग टू कन्विंस हिम कि आपको भी मिलना, तुमको भी मिलना चाहिए, चलो मिलना चाहिए सारों से। बट अभय वॉज रिलक्टेंट, उनको मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो अवॉइड करने का ही ट्राई कर रहे थे। लेकिन नरेन pressed him. They stood talking amidst the passers-by on the crowded early evening street as the traffic of horse-drawn hackneys, ox carts, and occasional auto taxis and motor buses moved noisily on the road. Naren put his hand firmly around his friend's arm, trying to drag him forward, while Abhay smiled but stubbornly pulled the other way. Naren argued that since they were only a few blocks away, they should at least pay a short visit.
तो ठीक है, साथ में चल रहे थे दोनों, अभय और उनके जो फ्रेंड थे, दोनों साथ में चल रहे थे। तो नरेन ने क्या किया, अभय का जो हाथ है उसको बहुत कोमलता से पकड़ा और अपनी तरफ, मतलब वो अपनी तरफ उनको ड्रैग कर रहे थे ताकि वो चले। बट अभय वाज स्माइलिंग और वो अपनी मतलब जिद पर थे कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तो फिर वो दूसरे साइड चले गए। फिर नरेन उनको कहने लगे, मतलब ही वाज काइंड ऑफ आर्ग्यूइंग कि हम थोड़ा, मतलब थोड़ी दूरी तो है, वहां पर चल के आना चाहिए, थोड़ी देर के लिए क्या दिक्कत है। अभय laughed and asked to be excused. People could see that the two young men were friends, but it was a curious sight. The handsome young man dressed in white khadi kurta and dhoti being pulled along by his friend. तो अभय बस हंस रहे थे और वो बस ही वाज सेइंग दैट प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे नहीं जाना है। पर जो नरेन थे वो उनको बस लेकर जाना ही चाह रहे थे। Naren explained that the sadhu Srila Bhakti Siddhant Saraswati was a Vaishnava and a great devotee of Lord Chaitanya Mahaprabhu. अच्छा, ये बात आप समझ रहे हैं कि अभय क्यों नहीं जाना चाह रहे? वो तो खुद डिवोटी है, भगवान कृष्ण के भक्त है, तो फिर क्यों वो नहीं जाना चाह रहे किसी भी साधु से मिलने? क्योंकि उनके घर पे उन्होंने स्टार्टिंग से ही देखा है कि सो कॉल्ड साधुज आया करते थे। Even though his father was respectful to them also, पर उन्होंने स्टार्टिंग से इसी तरह का वातावरण देखा था कि साधु घर में आते थे, पर उनका आचरण साधुओं वाला नहीं हुआ करता था। तो इस वजह से वो सोच रहे थे कि अ, जहां पर ये लेकर जाना चाहते हैं मेरे मित्र, तो वहां पर भी ऐसा ही कुछ होगा। सो दैट्स व्हाई ही वाज नॉट इंटरेस्टेड। इस वजह से वो इस तरह से बहाना बना रहे थे। लेकिन बाद में उन्होंने नरेन ने उनको एक्सप्लेन किया कि वो जो साधु है श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती, वो एक वैष्णव है और चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्त हैं। One of his disciples, a sannyasi, had visited the Malik house and had invited them to meet Srila Bhakti Siddhanta. A few of the Maliks had gone to see him and had been very much impressed. तो बता रहे कि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से जब मिलने गए उनके कुछ मित्र, सो दे वर वेरी इम्प्रेस्ड टू मीट हिम। तो इस वजह से वो चाहते हैं कि अभय भी, एक बार अभय को भी जाना चाहिए। बट अभय रिमेन skeptical. Oh no, I know all these sadhus, he said. I'm not going. Abhay had seen many sadhus in his childhood. Every day his father had entertained at least three or four in his house, in his home. Some of them were no more than beggars, and some even smoked ganja. So आप देख रहे हैं, इस तरह से मैंने स्टार्टिंग से ही अपने घर में देखा है कि जब ये आते थे सो कॉल्ड साधुस, तो वो ठीक है, दिखने में उन्होंने कपड़ा पहना है साधु का, पर आचरण उनका वैसा कभी भी नहीं होता था। So that's why Abhay remained skeptical. वो सोच रहे थे कि नहीं, नहीं जाना है मुझे। मतलब संशय था उनके मन में कि मैं जानता हूँ इन साधुओं को, मेरे को नहीं जाना है मिलने। Gaur Mohan had been very liberal in allowing anyone who wore the saffron robes of a sannyasi to come. But did it mean that though a man was no more than a beggar or ganja smoker, he had to be considered saintly just because he dressed as a sannyasi or was collecting funds in the name of building a monastery or could influence people with his speech? तो ठीक है, उनके जो पिताजी थे, अभय के जो पिताजी थे गौर मोहन, वो जो भी व्यक्ति सन्यासी के वेश में आते आते थे, उनका वो स्वागत करते थे और मतलब उनको एंटरटेन करते थे। लेकिन अभय के दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन रहता था कि बस सन्यासी का कपड़ा किसी ने पहन लिया तो क्या उसी से वो साधु हो गया?
चाहे से वो गांजा पी रहा है या एक बेगर मतलब भजन वजन कुछ कर नहीं रहा है, बस फ्री में उसको खाना पानी दे दो। और इसके अलावा कलेक्टिंग फंड्स इन द नेम ऑफ बिल्डिंग अ मोनेस्ट्री। तो ये सारी चीजें सिर्फ इसी से क्या कोई व्यक्ति साधु हो गया? No, by and large, they were a disappointing lot. Abhay had even seen a man in his neighborhood who was a beggar by occupation. In the morning, when others dressed in their work clothes and went to their jobs, this man would put on saffron clothes and go out to beg and in this way earn his livelihood. But was it fitting that such a so called sadhu be paid a respectful visit as if he were a guru? तो हमें बता रहे हैं कि ये सारी चीजें उनको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करती थी। और अभय में तो अपने ही पड़ोसी में उनके कोई व्यक्ति रहते थे जो एक बैगर थे। बैगर मतलब जो आप जानते हैं रोड पर बैठे रहते हैं, कुछ काम धाम करते नहीं है। तो और दिन मतलब डेली बाकी सब तो अपना ऑफिस का ड्रेस पहन के ऑफिस जाया करते थे, पर ये साधु महात्मा सो कॉल्ड साधु क्या करते थे? अपना सैफ्रॉन ड्रेस पहनकर इधर-उधर जाते थे माँगने के लिए, अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए। पर क्या साधुओं को ये सब शोभा देता है कि भजन-वजन कुछ कर रहे नहीं और इस तरह से दिखा रहे हैं कि भाई बहुत बड़े गुरु हैं। सो ये सारी चीजें अभय को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करती थी। Naren argued that he felt that this particular sadhu was a very learned scholar and that Abhay should at least meet him and judge for himself. Abhay wished that Naren would not behave this way, but finally he could no longer refuse his friend. Together they walked past the Parshnath Jain temple to Ulta Danga with its sign Bhakti Vinod Asan announcing it to be the quarters of the Gaudiya Math. तो ठीक है, ये सारी बातें जब बता रहे थे अभय कि ऐसे-ऐसे साधुओं का आचरण सो कॉल्ड साधुओं का आचरण, तो बता रहे थे लेकिन नरेन बता रहे थे कि जिन साधु के बारे में मैं बता रहा हूँ, वो कुछ अलग है। ही इज अ वेरी लर्नेड स्कॉलर। मतलब शास्त्र की बात बहुत अच्छे से बताते, शास्त्र की बातें रखते हैं और तुम्हें कम से कम उनसे मिलना चाहिए और उसके बाद में जज करना चाहिए कि ये वास्तव में सो कॉल्ड साधु है कि क्या है। अभी बस चाह रहे थे कि नरेन ऐसा बिहेव ना करे, लेकिन बाद में फिर वो नरेन को मना नहीं कर पाए क्योंकि वो इतना ज्यादा उनको कह रहे थे। तो साथ में बाद में वो गए और जहाँ जिस क्वार्टर में वो गए तो वो गौड़िया मठ का क्वार्टर था। When they inquired at the door, a young man recognized Mr. Malik Naren had previously given a donation and immediately escorted them up to the roof of the second floor and into the presence of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati, who was sitting and enjoying the early evening atmosphere with a few disciples and guests. तो जब गए दरवाजे पे मतलब उन्होंने खोला तो वहां पर ही जो ब्रह्मचारी थे, उन्हें याद आया कि अच्छा ये तो नरेन के विषय में, अच्छा ये व्यक्ति तो पहले भी आए थे और इन्होंने ऐसे-ऐसे डोनेशन दिया था। तो इमीडिएटली दे जस्ट वेंट ऑन द सेकंड फ्लोर जहाँ पर श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती बैठे थे और अपने शिष्य और जो भी बाहर से लोग आए थे, उनके बीच में वे बैठे थे। Sitting with his back very straight, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati appeared tall. He was slender. His arms were long and his complexion was fair and golden. He wore round bifocals with simple frames. His nose was sharp, his forehead broad, and his expression was very scholarly yet not all timid. तो मतलब शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के विषय में बताया जा रहा है कि जैसे वो गए अंदर तो उन्होंने देखा
कि वो स्ट्रेट बैठे थे और बहुत मतलब ही वॉज वेरी टॉल। मतलब उनके विषय में बताया जा रहा है कि उनके जो हाथ थे वो किस तरह से लंबे थे, कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर और गोल्डन था। मतलब आप समझ रहे कॉम्प्लेक्शन के विषय में क्यों बताया जा रहा है। भक्ति करने से व्यक्ति के चेहरे पे एक अलग ही तेज जो होता है वो उनके चेहरे पर दिख रहा था। ये देखिए बिल्कुल स्पष्ट बात है, प्रैक्टिकल चीज है कि जो भी व्यक्ति भजन करता है, अपनी इंद्रियों को संयमित करता है, उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज होता है। जो सामान्य कोई भौतिकतावादी व्यक्ति कितना ही वो मेकअप वेकअप भी लगा ले, तब भी वो बात नहीं होती है। और आप ये चीज देख रहे हैं कि पहले एटलीस्ट मैं इस चीज से बहुत रिलेट कर पाती हूँ। व्हेन माय कॉन्शियसनेस वाज डल, मतलब अभी भी इतनी एलिवेटेड नहीं हुई है, पर पहले ये जो भी हॉलीवुड बॉलीवुड में जो भी हीरो हीरोइंस होते थे, तो वो मेकअप वगैरह करते थे तो कितने सुंदर लगते थे। बट अब मैं उनको देखती हूँ तो लिटरली मुझे वो कार्टून लगते हैं। जो भी मेकअप वगैरह लगा के कोई भी माता जी मुझे दिख जाती है लिपस्टिक लगा के घूम रही है, मुझे बहुत बड़ी कार्टून लगती है। यहाँ पर तो आई होप कोई नहीं लगा, हाँ, कोई भी नहीं लगाते यहाँ तो यस, ये आप देख रहे हैं कॉन्शियसनेस का कितना फर्क है। और आप देखिए जो भक्त है कुछ मेकअप वेकअप कुछ नहीं, देहात में बुद्धि से तो बिल्कुल बाहर ही रहते हैं। जो रियल डिवोटीज हैं, जो अच्छे से अपना भजन करते हैं डेली, तो आप देखेंगे उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज होता है। इस बार जब मैं वृंदावन गई थी, आई रियली सॉ दिस। मतलब ठीक है, जूम पर तो मैं देखती ही थी डेली, जब भी दर्शन वगैरह होते थे भक्तों को भी मैं देखती थी, पर वृंदावन में जाने के बाद में आई वॉज जस्ट एस्टोनिश्ड। एक अलग ही तेज होता है भक्तों के चेहरे पर, और ये सब भक्ति का प्रभाव होता है। तो बताया जा रहा है दैट ही वो राउंड बिफोकल्स, मतलब गोल चश्मा उन्होंने पहना हुआ था। उनका जो फोरहेड था इट वाज ब्रॉड एंड एक्सप्रेशन वाज वेरी स्कॉलरली येट नॉट एट ऑल timid। बहुत बोल्डली जो भी शास्त्र की बात बता रहे थे, बहुत बोल्डली बता रहे थे। द वर्टिकल मार्किंग्स ऑफ वैष्णवा तिलक ऑन हिज फोरहेड वर फेमिलियर टू अभय। वैष्णवा तिलक उन्होंने लगाया हुआ था, which was familiar to Abhay, as were the simple sannyas robes that draped over his right shoulder, leaving the other shoulder and half his chest bare। तो बताया जा रहा है जैसे सन्यासी पहनते हैं अपना जो भी वो रोब, इस तरह से उन्होंने पहना हुआ था। He wore tulsi neck beads, the clay Vaishnava markings of Tilak were visible at his throat, shoulder, upper arms। जो भी 12 तिलक है उनके दिख रहे थे इस तरह से। A clean white Brahminical thread was looped around his neck and draped across his chest। Abhay and Naren, having both been raised in Vaishnava families, immediately offered prostrated obeisances at the sight of the revered sannyasi। दोनों ही वैष्णव फैमिली में बड़े हुए थे, तो उनको देखते ही उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। किन्होंने प्रणाम किया? अभय और नरेन ने श्रीला भक्ति सुधान सरस्वती ठाकुर जी को प्रणाम किया। While the two young men were still rising and preparing to sit, before any preliminary formalities of conversation had begun, Srila Bhakti Siddhant immediately said to them, "You are educated men. Why don't you preach Lord Chaitanya Mahaprabhu's message throughout the whole world?" तो ये बहुत ही prominent pastime है। सब you might be familiar with this कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने जब अभय को देखा था, अभय और नरेन को, अ, तो ही इमीडिएटली मतलब अपना भाषण देते देते जो भी प्रवचन वे दे रहे थे, देते देते जैसे उन्होंने उनको देखा, so just pointed out to अभय that you are educated man, पढ़े लिखे हो आप, तो आप चैतन्य महाप्रभु का जो प्रचार प्रसार है, आप ये क्यों नहीं करते हैं?
विश्व भर में। अब आप बताइए उस टाइम पर जो अभय है कितना मतलब सरप्राइज हुए होंगे, क्या प्रचार हम। और देखिए आपको बताती भी है, अभय could hardly believe what he had just heard. They had not even exchanged views, yet this sadhu was telling them what they should do. Sitting face to face with Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, Abhay was gathering his wits and trying to gain a comprehensible impression. But this person had already told them to become preachers and go all over the world. तो अभय को विश्वास ही नहीं हो रहा था जो उन्होंने अभी सुना। अभी तक उन्होंने एक दूसरे से बात भी नहीं की। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी और अभय ने एक दूसरे से बात भी नहीं की, एक दूसरे के बारे में कुछ जानते भी नहीं है कैसे क्या है। और ये जो साधु हैं ये कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हमें करना क्या चाहिए। तो बिल्कुल सामने मतलब एक तरह सामने सामने बैठे थे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी और अभय और उनके मित्र। और वो बस चाह रहे थे कि उनका इंटरेक्शन हो, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने उनको बता दिया कि आपको प्रचारक बनना चाहिए और आपको पूरे विश्व भर में प्रचार करना चाहिए। Abhay was immediately impressed, but he was not going to drop his intelligent skepticism. अच्छा, इम्प्रेस क्यों हुए थे? इम्प्रेस इसलिए नहीं हुए थे कि श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी काइंड ऑफ प्रेज्ड हिम। आप सोचिए ना किसी व्यक्ति को इस तरह से कहना कि भाई आप प्रचार करिए पूरे विश्व भर में, और वो भी इस तरह से ही वाज अ लर्नेड स्कॉलर। कोई ऐसे व्यक्ति आपको इस तरह की बात कह रहे हैं तो मजाक तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं था कि उनकी तारीफ करने के लिए, उनको इम्प्रेस करने के लिए उन्होंने ऐसा कहा, बट वो इम्प्रेस किस चीज से हुए थे अभय? वो जो भी अपना प्रवचन दे रहे थे उसको सुनकर। बट ही वॉज नॉट गोइंग टू ड्रॉप हिज इंटेलिजेंस स्केप्टिसिज्म, लेकिन उनका जो संशय था, स्केप्टिसिज्म आप समझ रहे हैं, जैसे जो पुलिस वाले होते हैं वो ताका झाकी करते हैं। I'm not getting the exact word, बट स्केप्टिसिज्म मतलब जो संशय है उसको बस मतलब दूर जब तक वो नहीं होता उसमें लगे रहते हैं, उसकी जांच पड़ताल में लगे रहते हैं। तो वो उसको नहीं छोड़ने वाले थे अभी अभय। After all, there were assumptions in what the sadhu had said. Abhay had already announced himself by his dress to be a follower of Gandhi, and he felt the impulse to raise an argument. So, as he was somehow he was following Gandhi ji, तो इस वजह से वो एक आर्ग्यूमेंट रेज करना चाह रहे थे जो भी श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कह रहे थे उसके अगेंस्ट। Yet, as he continued to listen to Srila Bhakti Siddhanta speak, he also began to feel won over by the sadhu's strength of conviction. He could sense that Srila Bhakti Siddhanta didn't care for anything but Lord Chaitanya, and that this was what made him great. This was why followers had gathered around him and why Abhay himself felt drawn, inspired, and humbled and wanted to hear more. But he felt obliged to make an argument to test the truth. तो अब है बस श्रील भक्ति सिद्धांत को सुन रहे थे, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को सुन रहे थे। और बस वो देख रहे थे कि जो भी वो साधु कह रहे थे उनकी वाणी में एक अलग तेज था। उनको किसी भी चीज से कोई भी मतलब नहीं था। ही वॉज ओनली केयरिंग अबाउट लॉर्ड चैतन्यास मैसेज, दैट्स इट। और यही चीज उन्हें महान बनाई थी। देखिए ये बात स्वयं श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं दैट
कोई भी व्यक्ति अगर भगवान कृष्ण के यश का प्रचार करता है, प्रचार प्रसार में लग जाता है, so people will start respecting him. मतलब आप समझ रहे हैं ना, सच में उसका इंटेंशन है कि वो भगवान के यश का प्रचार करे, कुछ फेम वेम अर्न करने के लिए प्रचार नहीं कर रहा, या कुछ उसको दौलत मिल जाए, कुछ यश मिल जाए, धन मिल जाए, इन सब के लिए नहीं. He is really eager to preach about the message of Lord Chaitanya Mahaprabhu, about Krishna. So people will start respecting. और आप खुद देखेंगे, भक्ति करने से ऐसा होता है कि बस घर वालों से थोड़ा नहीं मिलता है रेस्पेक्ट, पर ऐसा भी नहीं है कि उनसे नहीं मिलता है. इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इग्नोरेंस. अगर भक्त नहीं है घर वाले, तो वो समझ नहीं पाते कि ये कर क्या रहा है या कर क्या रही है. पर आप देखेंगे, आप जिन्हें भी भगवान के विषय में बताते हैं और वो भक्ति एक्सेप्ट करते हैं, तो वो कितना कृतज्ञ महसूस करते हैं. जिन्हें भी आपने भक्ति के विषय में बताया हो, या आप ठीक है औरों की बात मत करिए ना, आप जिनकी वजह से भक्ति में आए हैं, क्या आप उनके विषय में अपने हृदय में ग्रैटिट्यूड की भावना नहीं रखते? डोंट यू रेस्पेक्ट दैट पर्सन? जैसे अभी उन वो अच्छे से भक्ति नहीं कर पा रहे हो, जिन्होंने आप जो आपको जिनके माध्यम से आप भक्ति में आए, but फिर भी don't you feel respect in your heart for that person? तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि he was not caring about anything but for Lord Chaitanya, and that this what made him great. तो उनके आसपास बहुत सारे उनके जो फॉलोअर्स थे, वो बैठे थे, और अभय भी उनको सुन रहे थे, और उनको सुनकर अपने आप ही उनके हृदय में विनम्रता आ रही थी. ही वॉज हम्बल्ड. पर फिर भी वो चाह रहे थे कि वो कुछ आर्ग्यूमेंट करे टू टेस्ट द ट्रूथ. Drawn irresistibly into discussion, Abhay spoke up in answer to the words Srila Bhaktisiddhanta had so tersely spoken in the first seconds of their meeting. Who will hear your Chaitanya's message? Abhay queried. We are dependent country. First India must become independent. How can we spread Indian culture if we are under British rule? तो ठीक है, कैसे ना कैसे करके अभय ने इंटरप्ट कर ही दिया बीच में. श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती जो भी अपना प्रवचन कर रहे थे, तो उसके बीच में अभय ने कह ही दिया कि कौन आपके चैतन्य महाप्रभु का जो भी मैसेज है, कौन सुनेगा उसको? वी आर डिपेंडेंट कंट्री. अभी हम मतलब स्वतंत्र नहीं है हम, और हम जो भी फॉरेनर्स है उसके अंडर हैं. तो कैसे जो इंडिया है वो अपना कल्चर बाहर दूसरे देशों में स्प्रेड कर सकता है? हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? Abhay has not asked haughtily, just to be provocative. मतलब उन्होंने ऐसा नहीं था कि अपना क्रोध कुछ प्रदर्शन किया हो, कि एग्रेसिव होकर उन्होंने ऐसा नहीं पूछा था. ऐसा लग रहा है सुनने में कि वो एग्रेसिव होकर बोल रहे हैं, बट उन्होंने एग्रेसिव होकर नहीं कहा था. It was just provocative, yet his question was clearly a challenge. ठीक है, अग्रेसिव होकर उन्होंने नहीं बोला हो, बट उनका जो क्वेश्चन था वो एक चैलेंज था. जैसे मुझे इस पर एक बात याद आ रही है. शायद कभी के लेक्चर में हमने सुना था, जब भागवतम की क्लास में सुबह ही, कि श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी चैतन्य चरितमृत लिखे, एंड ही वॉज वेरी वेरी हम्बल, वेरी वेरी सॉफ्ट हार्टेड. लेकिन उसके बाद में भी वे एक बात कहते हैं कि कृपया मेरा उन सभी लोगों से अनुरोध है
I रिक्वेस्ट विद ऑल दोज पीपल जिन भी लोगों को चैतन्य महाप्रभु पर विश्वास नहीं है, कृपया वो इस ग्रंथ को ना पढ़े। अब ठीक है, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं बहुत विनम्रता से है, बट फिर भी ये थोड़ी एक हैवी लाइन है कि भाई पढ़ो ही मत, अगर नहीं है विश्वास तो मत पढ़ो। सो सेम वे यहाँ पर अब है, इस तरह से कह रहे हैं, पर एग्रेसिवली उन्होंने नहीं कहा, बट स्टिल his question was clearly a challenge. If he were to take his this sadhu's remark to them as a serious one, and there was nothing in Srila Bhakti Siddhant's uh, demeanor to indicate that he had not been serious, Abhay felt compelled to question how he could prop- propose such a thing while India was still dependent. तो ठीक है, अगर उन्होंने साधु में जो भी कहा, श्रीमती संत सरस्वती ठाकुर जी ने उनको कहा भी कि आप इस तरह से प्रचार करिए चैतन्य महाप्रभु के विषय में, अगर वे उनकी बात को सीरियसली ले भी, अगर वे प्रचार करना भी चाहे, तो फिर भी अभय फेल्ट कंपेल्ड टू क्वेश्चन कि कैसे वो इस पर्पस को एक्शन में ला सकते हैं, क्योंकि इंडिया वॉज स्टिल डिपेंडेंट, अभी स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं हुआ था, जो भारत था, ही वॉज अंडर ब्रिटिश रूल। तो अगर सच में भी प्रचार करना भी चाहे, तो कैसे भी पॉसिबल हो सकता है, ये जानना चाह रहे थे। तो ये एक क्वेश्चन भी उनके मन में था कि सच में अगर हम प्रचार करना भी चाहे तो हम वो कैसे कर सकते हैं। इस वजह से भी उन्होंने इस तरह से क्वेश्चन उनसे पूछा। Srila Bhakti Siddhant replied in a quiet, deep voice that Krishna consciousness didn't have to wait for a change in Indian politics, nor was it dependent on who ruled. Krishna consciousness was so important, so exclusively important that it could not wait. अब देखिए यहां से एक बात समझ आ रही है, क्या बात कही जा रही है। जो भी हम बहानेबाजी बनाते हैं कि अभी तो हम इस सिचुएशन में फंसे हैं, अभी तो हमें ये ड्यूटी है हमारी, अभी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वास्तव में जो भक्ति है वो इन सब चीजों पर निर्भर नहीं है। आप जिस भी स्थिति में हैं, जिस भी अवस्था में हैं, वहीं से आप खड़े होकर भगवान की भक्ति कर सकते हैं। यू रियली डोंट हैव टू वेट कि सब कुछ मेरी लाइफ में परफेक्ट हो जाए तब मैं भक्ति करूंगा। यू रियली डोंट हैव टू वेट फॉर दैट। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी यहाँ पर कह रहे हैं, मेरी बात तो नहीं है ये। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली कि हमारे जीवन में जो भी सिचुएशंस, जो भी सो कॉल्ड ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो पूरा जीवन ऐसे ही चलती ही रहेगी। देयर विल बी मतलब ऐसा कोई दिन आएगा ही नहीं जब सारी चीजें एकदम परफेक्ट हो। और ये चीज देखिए, मैं हमेशा ही ये चीज सोचती हूँ कि जब से भक्ति में आए हैं तो भक्तों के संग में एक भक्ति ही है जो कंसिस्टेंटली हो पा रही है। नहीं तो मैं कितने सारे प्लान्स बनाती हूँ, मुझे ये करना है वो करना है, वो सब रह जाता है। पर भक्तों के संग में एक भक्ति ही है नियमित रूप से, जो हमारा श्रवण कीर्तन है वो बस चल रहा है, और वो चल ही रहा है, चाहे से कैसी ही सिचुएशन हो, कैसी ही सिचुएशन में हम फंसे हो, पर हमें हमारे भजन के लिए टाइम निकाल ही लेना चाहिए। एक्सक्लूसिव टाइम फॉर आवर हियरिंग एंड चैंटिंग। हाँ सोचिए ना, भगवान फ्री में एक तरह से हमें कृष्ण प्रेम देने आए हैं, चैतन्य महाप्रभु। और ये जो चांस है, आपने सुना ही होगा, जिंदगी मौके मतलब बार बार नहीं आते, ऐसा कुछ लाइन है। तो जब हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, तो इसका कितना हमें फायदा उठाना चाहिए वास्तव में।
पूरा हमें हमारा दे देना चाहिए कि हम अच्छे से भक्ति करें। सो यस, इट कुड नॉट वेट। बहुत सुंदर मुझे ये लाइन लगती है। कृष्णा कॉन्शियसनेस डिडंट हैव टू वेट फॉर अ चेंज। इसको अगर हम थोड़ा चेंज करें, so Krishna consciousness didn't have to wait for a change in our life. Whatever situation, जो भी situations में हम हैं, उस पर dependent नहीं है. Abhay was struck by his boldness. How could he say such a thing? The whole world of India beyond this little Ulta Danga rooftop was in turmoil and seemed to support what Abhay had said. Many famous leaders of Bengal, many saints, even Gandhi himself, men who were educated and spiritually minded, all might very well have asked the same question, challenging the sadhu's relevancy. And yet he was dismissing everything and everyone as if they were no consequence. They were of no consequence. तो यही तो बात है, ये बहुत सुंदर बात है कि ठीक है, सारे जो लोग हैं, सभी लोगों ने अभय की बात का समर्थन किया था। उन्होंने जो ये क्वेश्चन किया था कि कौन आपके चैतन्य महाप्रभु का मैसेज कौन सुनेगा, अभी तो हम स्वतंत्र नहीं है, वी आर डिपेंडेंट कंट्री। लेकिन अभय, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की बोल्डनेस को देख के वॉज जस्ट स्ट्रक, एकदम स्तंभित हो गए देखकर। अरे मतलब उनको बिल्कुल कुछ फर्क ही नहीं है कि इंडिया कैसी भी सिचुएशन में हो, वो बस सभी, मतलब जितने भी वहां पर लोग थे, चाहे से कोई लीडर हो, कोई भी व्यक्ति हो, सभी की ये जो बात थी उसका उन्होंने खंडन कर दिया। अबे वॉज जस्ट स्ट्रक कि ऐसा कैसे बोल सकते हैं ये। और उनकी वाणी में ऐसा तेज था कि सिर्फ बोलना ही नहीं, इस तरह से बोलना कि वो वास्तविकता हो। आप देखिए कि भक्ति करने से जो व्यक्ति है उसकी वाणी में भी एक अलग तेज होता है। जहां पर भी मतलब, सी, इफ हिज इंटेंशन इज टू प्लीज कृष्णा, जहां पर भी वह प्रचार करता है तो उसकी वाणी में इतना तेज होता है कि वाकई लोग उसके प्रचार से प्रभावित होते हैं। सारी शास्त्र की बातें हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत continued. We will read one more page, okay? Then we can stop. Srila Bhakti Siddhant continued. Whether one power or another ruled was a temporary situation, but the eternal reality is Krishna consciousness. And the real self is the spirit soul. No man made political system, therefore, could actually help humanity. कितनी सुंदर बातें हैं कि जैसे कोई एक पावर रूल कर रही है, फिर दूसरी पावर रूल करेगी। कोई व्यक्ति आज ये बन गया है, कोई व्यक्ति इस पद को प्राप्त कर गया है, कोई व्यक्ति इतना धन उसको प्राप्त हो गया है, कोई व्यक्ति इतना सुंदर हो गया है। ये सारी चीजें वास्तव में टेम्पररी है। समझ रहे हैं इस बात को? हम जहां पर भी हमारा दिमाग लगा रहे हैं, इस पर देखिए, थोड़ा भी अगर हम कॉन्शियस हो जाए तो ये है तो सारी टेम्पररी सिचुएशंस ही, कब तक हमारे साथ में रहने वाली है। बट द इटर्नल रियलिटी इज कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड द रियल सेल्फ इज द स्पिरिट सोल। This material body is not reality. There is nothing real in this material body or whatever material duties we have. कुछ भी उसमें सच नहीं है, सारी टेम्परेरी चीजें हैं। क्योंकि जो शाश्वत रियलिटी है, वास्तविकता है, शाश्वत वास्तविकता, वो है कृष्ण भावनामृत। और यह है कि हम आत्मा हैं।
और ये जो भी मैन मेड पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, ये ह्यूमैनिटी could not actually help humanity. This was the verdict of the Vedic scriptures and the line of spiritual masters. Although everyone is an eternal servant of God, when one takes himself to be the temporary body and regards the nation of his birth as worshipable, he comes under illusion. और स्वयं भगवान भी ये बात बताते हैं 10वें स्कंद में. आई विल नॉट बी एबल टू कोट द एग्जैक्ट श्लोका, पर मुझे इसका मीनिंग मालूम है कि कोई भी जो व्यक्ति है उसकी बुद्धि बहुत ही ज्यादा अपने घर परिवार में है और अपने बच्चों में है, धन में है, और जो भी तीर्थ स्थल है वहां पर उसकी बुद्धि है, लेकिन वह साधुओं से सुनने में उसकी कोई रुचि नहीं है. भगवान के विषय में, भक्तों के संग में वह सुने तो वह, एक वर्ड आता है गोखरा, वह गधा है. गधे के समान भी नहीं है. स्वयं भगवान कह रहे हैं वह वास्तव में गधा है. तो यहाँ पर सेम चीज श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी बता रहे हैं, शास्त्र की बात बता रहे हैं. ऐसे कह रहे हैं कि हम सभी भगवान के शाश्वत नित्य दास हैं, लेकिन फिर भी हम मतलब इस मटेरियल बॉडी में है, टेम्पररी बॉडी में है, और अगर हम इसको ही सच मान रहे हैं कि हम ये शरीर है और हम जहां पर जन्मे हैं वो पृथ्वी वर्शिपेबल है, ये सारी चीजें हम मान रहे हैं, तो ये सब कुछ इल्यूजन है, छला इल्यूजन है, सब कुछ माया है. तो उसमें हाँ ऐसे भी था कि अपनी पृथ्वी को, कि हमारी जो माता है, भारत माता है या कोई भी माता है, मतलब जो भी जहां पर वो रह रहा है, उससे वह अपनी पहचान करके सोचता है कि ये ही वर्शिपेबल है, इसकी ही मुझे पूजा करनी है, इसी के लिए मुझे अपना जीवन दे देना है. तो वो वास्तव में गोखर है, गधा है. और यहाँ पर बता रहे हैं वो इल्यूजन है, माया में है. The leaders and followers of the world's political movements, including the movement for Swaraj, were simply cultivating this illusion. Real welfare work, whether individual, social, or political, should help prepare a person for his next life and help him re-establish his eternal relationship with the Supreme. तो आप देख रहे हैं ना, इस वजह से ये जो भी न्यूज पेपर पढ़ना, न्यूज देखना, ये सारी चीजें क्यों पढ़ने के लिए मना किया जाता है? क्योंकि सब कुछ ये इल्यूजन है, कुछ भी उसमें सच है ही नहीं. वास्तविकता क्या है कि व्यक्ति को अपने अगले जीवन के लिए प्रिपेयर किया जाना चाहिए, उसको की जाए कि वह कैसे अपना जो संबंध है वह भगवान से पुनः जागृत करे. ये वास्तविक ज्ञान है. न्यूज़पेपर में तो सब कुछ कचरा है, कुछ भी सच चीज नहीं है. ठीक है, एक पैराग्राफ और पढ़ेंगे, देन वी स्टॉप. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati has articulated these ideas many times before in his writing. ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा. We will stop here now. We will continue with page 45 tomorrow if Krishna's will. Thank you so much for joining. Hare Krishna, Jai Shri Prabhupada.